Now we move on to the last circuit, that is pure capacitive circuit. सिंपल सर्किट्स में हमने तीन स्टडी करने थे, पहले प्योर रेजिस्टिव हमने पढ़ लिए, फिर प्योर इंडक्टिव पढ़े. नाउ एट लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी प्योर कैपेसिटिव सर्किट. Pure capacitive circuit are those AC circuits which have only capacitors connected along the AC source. AC source के साथ सिर्फ कैपेसिटर्स को कनेक्टेड किया हुआ है, ऐसे सर्किट को हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं. मींस द सर्किट दैट हैव ओनली कैपेसिटेंसेस. नाउ वी हैव assumed that a capacitor of capacitance C is connected across an AC source whose voltage is given by V equal to V naught sin omega t. This is the key. When key is closed, any current I start flowing in the circuit, and we know current is equal to charge upon time. In case of DC, it will be called Q upon T, but in case of AC, because it is changing quickly, so we have to find current by small interval taking dq by dt. So in case of AC, current I equal to dq upon dt, but d by dt of Q, we know Q is C into V, because from the capacitance we know that capacitance is charge per unit voltage, so charge will be capacity in terms of voltage and CV, and putting the value of V itself, I can write C V naught sin omega t. Since C capacitance itself is a constant, we know the peak value of AC is also a constant, so will be taken out of differentiation. I will be called CV naught d by dt of sin omega t, and we know differentiation of sin omega t is plus cos omega t with a multiply of omega. So I equal to C V naught omega cos omega t. Omega again is a angular frequency which is constant. It will be taken out of integration, differentiation or whatever. So it will be taken outside. I equal to C omega into V naught sin pi by 2 plus omega t. यहाँ पर ध्यान रखें, cos omega t को मैंने फिर sin के टर्म्स में ब्रेक कर लिया. Although cos is a periodic function, but I will have both the equation in terms of sin. That's why I have to convert cos into sin. Cos omega t को अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूं cos ओमेगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो दिस वैल्यू गोज इन फोर्थ क्वाड्रेंट जहां साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मैं यहां पर माइनस नहीं करूंगा. cos ओमेगा टी को मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो 90 प्लस ओमेगा टी करूंगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर और ये सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव होता है. दैट्स व्हाई साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी विल बी रिटन हियर. और आई इक्वल टू V naught upon C omega. मैंने इसको थोड़ा अलग करके रख लिया, because we know current is what, some voltage divided by something, but यहाँ तो मल्टीप्लाई था, तो इस मल्टीप्लाई को पहले मैं डिवीजन में कन्वर्ट करता हूं. 1 upon C omega is equivalent to XC. This is called capacitive reactance. We will study it after this topic. तो capacitive reactance when dividing voltage, it becomes current amplitude यानी I naught. तो I naught can be written as V naught upon 1 upon C omega, और 1 upon C omega is called capacitive reactance यानी XC. तो I can be written as I naught sin omega t plus pi by 2. No matter आप इसको पहले रखें, मैंने omega t पहले रख लिया, omega t plus pi by 2. Now this is the equation of current in pure capacitive circuit. If I take the phase difference, वोल्टेज को मैं इस बार फिर प्राइमरी मान रहा हूं, तो आई एम टेकिंग phi इक्वल टू 5v माइनस 5i, यानी फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट. फेज ऑफ वोल्टेज था ओमेगा टी और फेज ऑफ करंट था मेरे पास ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. जब नेगेटिव हो जाएगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल होगा, और माइनस पाई बाई 2 यानी फाई कैन बी रिटन एज माइनस पाई बाई 2. क्योंकि मैंने पहले वोल्टेज लिया था इसलिए ये फेज वोल्टेज का आया. सो वी कैन से नेगेटिव फेज का मतलब है वोल्टेज इज लैगिंग. वोल्टेज लैग्स द करंट बाय 90 डिग्री, क्योंकि पाई बाई 2 को हम 90 डिग्री कहते हैं. यानी अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, सम अप करूं, तो इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है. इंडक्टिव सर्किट में करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा था, बट यहां पर 90 डिग्री आगे चल रहा है. नाउ एक और चीज यहां पर ध्यान देनी है, आमतौर पर जनरली
अगर मैं सी ओमेगा की वैल्यू लेस देन 1 मान लूं तो अलग बात है, बट नॉर्मली अगर मैं इसको 1 से ज्यादा मानता हूं, देन पीक ऑफ करंट इज ग्रेटर देन द पीक ऑफ voltage, yani amplitude of current will be larger than amplitude of voltage as current is obtained by multiplying something to V naught, यानी V naught को किसी चीज की मल्टीप्लाई करके मिला, इसलिए करंट बड़ा आएगा। सिर्फ वही केसेस जहां पर C ओमेगा की वैल्यू लेस देन 1 होगी वहीं पर करंट का एम्पलीट्यूड कम होगा, अदरवाइज इट विल बी हायर एवरी टाइम देन वोल्टेज, यानी करंट इज लीडिंग, करंट इज एम्बोसिंग, तो करंट डोमिनेट कर रहे हैं यहां पर। नाउ टाइम डायग्राम ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, हाउ टू ड्रॉ द टाइम डायग्राम, लेट अस सी। वी नो इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t, देन करंट विच इज लीडिंग बाय 90 डिग्री विल बी गिवन बाय I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। पॉजिटिव फेजर है यहां पर ये, यानी एंटी क्लॉकवाइज आने वाला है। सी, सबसे पहले इनका एक टेबल बना लेते हैं टाइम के साथ। मैंने पहले ओमेगा टी को स्टडी किया, ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन टी इनटू टी। फिर मैं देखता हूं ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी इस टाइम पर, फिर वोल्टेज की वैल्यू जो यहां से मिलेगी और फिर करंट की वैल्यू जो यहां से मिलेगी। जब मैं टाइम टी इक्वल टू 0 रखता हूं तो ओमेगा टी कम्स 0, और ये 0 होने के साथ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कम्स पॉजिटिव पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 यहां पर, तो V becomes 0 बट करंट becomes प्लस I नॉट। जब टाइम t बाई 4 लेता हूं तो यहां पर एंगल बन गया 90 डिग्री का, और 90 प्लस 90 दिस बिकम्स पाई, यानी 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और 180 डिग्री मतलब वोल्टेज तो होगा V नॉट, क्योंकि 90 बन जाएगा और साइन 180 की वैल्यू तो 0, तो करंट विल बी 0। जब मैं टाइम हाफ लूंगा, t बाई 2 लूंगा, तो उस टाइम ये एंगल बनेगा पाई और ये बनेगा पाई बाय 2। आप ध्यान से देखें कि करंट वाला जो एंगल है वो हर बार 90 डिग्री आगे चल रहा है। ये पाई है तो 3 पाई बाय 2 है, अगर ये 3 पाई बाय 2 है तो ये 2 पाई है, तो इट इज ऑलवेज 90 डिग्री अहेड, 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो दिस वे दिस टेबल गिव्स मी द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम्स। इफ आई ड्रॉ फर्स्ट विद द ब्लैक लाइन, आई एम ड्रॉइंग वोल्टेज ग्राफ V इक्वल टू, ये सिंपल ग्राफ है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, ये जीरो फेज डिफरेंस वाला ग्राफ है, यानी एट ए टाइम सीधे सीधे टाइम के साथ शुरू हो रहा है। जब मैं फेज डिफरेंस 90 डिग्री वाला ग्राफ यानी करंट का ले रहा हूं ब्लू कलर से, तो जिस टाइम वोल्टेज 0 था उस टाइम करंट मैक्सिमम यानी I नॉट था, जिस टाइम करंट वोल्टेज मैक्सिमम था उस टाइम करंट 0 था। तो दिस वे दिस ब्लू लाइन ग्राफ शोज द टाइम डायग्राम ऑफ करंट I इक्वल टू I नॉट ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और ये V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आपकी अपनी करने के लिए, आप मुझे टाइम डायग्राम और आइडेंट डायग्राम दोनों खींच के बताएंगे जब मेरे पास V इक्वल टू ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होगा, यानी इसको 90 डिग्री पीछे दिखाया और करंट को मैंने बेस यानी ओमेगा टी पर ले लिया। इस सिचुएशन का ग्राफ आपको खींचना है। जब करंट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी होगा तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री पीछे यानी माइनस पाई बाय 2 में आएगा, तो आपको इसका ग्राफ खींचना है टाइम डायग्राम। आर्गन डायग्राम देख लेते हैं पहली वैल्यू के हिसाब से। वोल्टेज ओमेगा टी के साथ था V नॉट, ये V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, बट क्योंकि करंट 90 डिग्री अहेड था, 90 डिग्री अहेड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सो एक बड़ा फेजर मैंने बताया, क्योंकि मैंने बताया था कि करंट एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वोल्टेज एम्पलीट्यूड से, तो यहां पर इसको मैंने थोड़ा आगे लिया। तो दिस ग्राफ I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये टाइम आर्गन डायग्राम है, फेजर डायग्राम है प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। नाउ वी हैव गॉन थ्रू ऑल द 3 सर्किट्स। अब एक लास्ट में समरी है ऑल द 3 सर्किट्स के बारे में, तीनों सर्किट की समरी वैल्यू क्या है। हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट स्टडी किए थे। इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट वी सी दैट 5 और 0, मैं मानता हूं कि वोल्टेज को मैं बेस क्वांटिटी मान रहा हूं और करंट को मैं उसका प्रोडक्ट मान रहा हूं, वोल्टेज से मैं करंट पैदा कर रहा हूं, दैट्स व्हाई यहां पर मैं वोल्टेज को पहले रखूंगा, जो भी फेजर होगा वो वोल्टेज के साथ एसोसिएट करूंगा मैं। तो फाई इक्वल टू 0, इसका मतलब ना तो वोल्टेज आगे था ना ही करंट आगे था, यानी बोथ V एंड I आर इन सेम फेज, यानी बोथ गो साइमल्टेनियसली, दोनों इंक्रीज होंगे तो एक साथ, डिक्रीज होंगे तो एक साथ, जीरो होंगे तो एक साथ। जब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो फाई कम्स प्लस पाई बाय 2,
मैंने कहा था कि फाई को मैंने वोल्टेज के साथ एसोसिएट किया है, तो वोल्टेज का जो फेज था वो प्लस पाई बाई 2 आया। इट मींस हम कह सकते हैं V लीड्स I बाय 90 डिग्री, यानी वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री और करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन प्योर इंडक्टिव सर्किट्स। जब मैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स की बात करता हूं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स में फाई कम्स माइनस पाई बाई 2, यानी आई कैन से वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री। और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज सर्किट्स। इन ऐसे सर्किट्स में स्पेशल चीज जो आपको करनी है, एक तो ये समरी आप सभी को एट ए टाइम याद होनी चाहिए, क्योंकि एलसीआर सर्किट में इसको यूज करेंगे, और सभी के टाइम डायग्राम और आर्गन डायग्राम यानी फेजर डायग्राम आपको पता होने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट्स। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।